اگلا سوال بہنوں کی جانب سے لیا جائے گا. السلام علیکم برادر. وعلیکم السلام. ہم اسٹوڈنٹ آف کمپنی سیکریٹری. ہم لوگ یوزولی سود سے ریلیٹڈ جو کوشچن ہے کہ چارٹر اکاؤنٹنٹ اور کمپنی سیکریٹری کمپنی نے جو لون لیا ہے اس کی پیمنٹ ری پیمنٹ ڈیٹیلز اور انٹرسٹ ریٹ یہ پورا گورنمنٹ کو انٹیمیٹ کرتے. جو آپ سود کے 10 قسمیں بتائے ہیں ہم لوگ اس میں مطلب انوالو ہے کہ انٹیمیشن دینے کا ہم لوگوں کی ڈیوٹی ہے. سو اس میں کچھ ہم آتے کیا یہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بہن نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے. بہن نے کہا ہے کہ بعض ایسے مسلم بھائی اور بہنیں ہیں جنہوں نے BCom کیا پھر چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کرتے ہیں اور کئی ایسے فرمز میں کمپنیز میں یا ایسے سروسز جوائن کرتے ہیں جہاں پہ یہ لوگ اپنی کمپنی کو ان کے سود کے معاملوں میں ہیلپ کرتے ہیں. تو اس صورت میں یہ کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 85 میں کہا جو کوئی نیک کام میں مدد کرے گا اس کو نیکی کرنے والے کے برابر انشاءاللہ اجر دیا جائے گا. جو برے کام میں مدد کرے گا اس کو گناہگار کے برابر کا گناہ دیا جائے گا. اس ضمن میں جب آپ کو یہ پتا چل چکا ہے کہ آپ سود کے معاملے میں کہیں بھی ہیلپ کر رہے ہیں کا مطلب آپ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے میرے اور میرے نبی سے جنگ کرو. کئی علماء سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ ان ہمارے مسلمان بھائیوں اور میری پیاری پیاری بہنوں کو نصیحت کریں کہ جو BCom آپ لوگ آسانی سے کر رہے ہیں اگر BCom کرنے کے بعد آپ نے جاب جوائن کیا اور اسلامک اکانومی پر ورک نہیں کیا آپ کا وہ جاب حرام آپ کی پوری کمائی حرام ہے. BCom آپ کو سود کے اوپر سکھا رہے ہیں. آپ گریجویشن میں سود پوری ڈیلنگ سیکھ رہے ہیں. کیسا آپ سود کی ڈیلنگ سیکھ کے اس کے بیسس کے اوپر جاب کر سکتے ہیں بتاؤ؟ اگر وہ سرٹیفکیٹ بنیاد بن کے آپ کو کہیں بھی جاب ملا جاب کتنا بھی حلال ہو اس سرٹیفکیٹ کی وجہ سے حرام ہے. آخرت تو گئی کام سے. اگر BCom کرتے ہوئے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کرتے ہوئے اسلامک اکانومی پہ ورک نہیں کیے تو پیدل ہو گئے سمجھو. اور ہمارے مسلمانوں میں ایک چیز کیا ہے معلوم سب سے آسان BCom دکھتا وہی کرتے اور پیسے والوں کو پیسہ پھینک کے MBBS کی سیٹ خریدنا معلوم ہے پیسہ پھینک کے MBBS کی سیٹ لیتے. ارے IAS اور IPS بنو میرے بھائی. کنٹری IAS اور IPS چلاتے 5 سال آنے والا سیاستدان 2 کوڑی کا نہیں چلاتا. پڑھے لکھے IAS IPS ہوتے. یہ لوگ جو دماغ بنتے گورنمنٹ کا گورنمنٹ وہی پالیسی امپلیمنٹ کرتی اور جو گورنمنٹ کا دماغ ہے اس میں ہمارے بد دماغ مسلمان ہے ہی نہیں تو قوم کا کیسا بھلا ہوں گا؟ IAS IPS کے لیے کوچنگز لو محنت کرو اللہ مدد کرے گا اس کے بعد انشاءاللہ. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جزاک اللہ خیر. بہن وہ آپ کے لیے کام جائز نہیں ہے جب آپ کو یہ کلیئر ہے کہ آپ سود کے کسی معاملے میں کسی کو ہیلپ کر رہے ہیں تو بالکل جائز نہیں ہے آپ کے لیے. امید آپ کو جانب سے لیا جائے گا. نان مسلم ہے جی ان کا سوال ہے. جی అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతుహు. నా పేరు గోపి. నాకు మీరు ఉర్దూ నయాత. నేను నౌ ముస్లిం ఇస్లాం స్వీకరించి 2 years అవుతుంది. అయితే చాలామంది మౌలి సాపులు ఒకటే మాట అన్నారు. నేను చాలా మస్జిద్కి వెళ్ళా ఖురాన్ అరబ్బీలోనే చదవాలి తెలుగులో చదవకూడదు అన్నారు. నాకు అరబ్బీ రాదు తెలుగులో చదివితే తప్పులు పోతాయి అన్నారు. నేను తెలుగులో కరెక్ట్గా చదువుకుంటున్నాను నాకు వచ్చిన విధంగా చదువుతున్నా. అదే నాకు తెలిసినట్టు తెలుగులో చదువుకుంటే అల్లాహ్ స్వీకరించడా దీన్ని? అది నా జవాబు. आपको उर्दू समझ में आती है? अभी मैं पूरा स्पीच यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? नहीं. अच्छा कोई उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं अगर मैं उर्दू में? उनका सवाल ये था वो कह रहे हैं कि उनको तेलुगु के सिवा कोई दूसरी ज़बान साफ़ नहीं आती और वो नॉन मुस्लिम है. वो ये कुरान का तर्जुमा तेलुगु में पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको कई लोगों ने जो अपने आप को पढ़े लिखे मुसलमान कहते हैं उन लोगों ने कहा है कि आप कुरान का तर्जुमा तेलुगु में नहीं पढ़ सकते उसमें गलतियां होते ये सही तरीक़ा नहीं है. तो मेरे लिए सही क्या है आप उनको बताइए. जी इमरान भाई जो कहेंगे वो आप उनसे कहिए. जी तो आप उनको बताइए कि ऐसा कुरान और हदीस में कहीं भी दलील नहीं आई कि कुरान का तर्जुमा मत पढ़ो बोलकर. आज सारी दुनिया में तर्जुमे आम हैं और यूरोप में जो सबसे तेज इस्लाम फैल रहा वो इंग्लिश तर्जुमे पढ़कर फैल रहा क्योंकि अमेरिकन और यूरोपियंस को भी अरबी नहीं आती. कई हम मुसलमान ऐसे जो कुरान पर अमल कर रहे हैं तर्जुमों को पढ़कर बगैर अरबी जाने के. तो इसके लिए कहीं भी दलील नहीं है कि ऐसा करने से कोई गुनाह होता. लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि क्योंकि कुरान अल्लाह ने अरबी में नाजिल किया वो अरबी को समझने के लिए बेसिक अरबी सीख जाएं. जिस तरह एक आदमी इंग्लिश सीखता है बेसिक उस तरह वो अरबी सीख लें तो बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह. लेकिन तब तक वो तेलुगु से
قرآن پڑھ سکتے ہیں اور جس کے اہم اہم باتیں ہیں اس کو سمجھ کر عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. సార్ మీకు ఇచ్చే సందేశం ఏమిటంటే తెలుగు భాష మీకు స్పష్టంగా వస్తుందంటే తెలుగు భాషలోనే మీరు ఖురాన్ చదవండి. ఖురాన్లో కానీ హదీస్లో కానీ ఎక్కడ కూడా ట్రాన్స్లేషన్ చదవకూడదు అనేటటువంటి నిబంధన ఎక్కడ లేదు. మీరు తెలుగు భాష మీకు మంచిగా వస్తే తెలుగులోనే చదివి మీరు అర్థం చేసుకోండి. కానీ ఒకవేళ మీరు ప్రయత్నం చేసి అరబీ నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది, ఎందుకంటే దాని మూల భాష అరబీ కాబట్టి అని చెప్పి సార్ మీకు సందేశం ఇస్తున్నారు. జజాకల్లాహు ఖైర్. अगला सवाल बहनों की जानिब से लिया जाएगा. अल्लाह बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह. मेरा नाम सफ़िया सुल्ताना है, मैं मुशीराबाद से आई. आजकल लड़कियों की शादी में जहेज को तोहफा बोलकर लोग दे रहे हैं. क्या वैसी जहेज की कोई किस्में हैं? क्योंकि मेरी भी शादी की उम्र की बेटियां हैं. बहन ने बहुत अहम सवाल किया है. वो कह रही हैं कि कई लोग जहेज़ को तोहफा बोलकर दे रहे हैं, तो क्या जहेज़ की कोई ऐसी किस्में हैं जिसमें तोहफे के नाम से भी जहेज़ दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है? बहन, इस्लाम ने जिस चीज़ को हराम किया वो हराम है, किसी भी शक्ल में दिया जाए वो हराम है. ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. कई लोग जहेज़ का असल डेफिनेशन नहीं समझ पा रहे हैं. जहेज़ के माने ये निकाल रहे हैं, देखो भाई जो चीज़ मांगे वो जहेज़ है, जो खुद से दे वो तोहफा है. लेकिन तोहफे में भी आप कोई ऐसी चीज़ और ऐसे वक्त पर नहीं दे सकते जो इस्लामी शरीयत से टकराती है. जहेज़ का डेफिनेशन शरई तौर पर यह लिया जाता है कि निकाह के वक्त, शादी के वक्त लड़की वाले मांगने पर या खुद से लड़के को और उसके घर वालों को कोई भी ऐसा तोहफा दें जो लड़का और लड़की दुल्हा दुल्हन दोनों मिलाकर इस्तेमाल करते हैं, वही जहेज है, वो हराम है. हाँ, आप बेटी को तोहफा देना चाहते हैं तो आप अपनी बेटी को सोना दे सकते हैं, सोने के जेवर दे सकते हैं जो आपका दामाद कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकता. मगर कितने की ऐसे बेगरते दामाद आए जो सोने की अंगूठियां भी पहनते, चेना भी पहनते. मुसलमान मर्द आदमी सोने की चेन, सोने की अंगूठी पहना तो मुसलमान मर्द आदमी बहुत ही गया गुजरा, बहुत आवारा दिखता, नबी का सख्त नाफरमान, खुला दुश्मन दिखता अल्लाह और उसके रसूल के तालीमात का. नहीं पहनना चाहिए. मुसलमान मर्द पर सोना मुकम्मल तौर पे हराम किया गया. तो हमारे दोस्ता हमारे नहीं, उन्हें बहुत पैसे वाले हैं तो हमारी सास भाई वो मंजे करे वक़्त, सांचक के वक़्त वो अंगूठी पिना दिया. तुम्हारा हाथ दिए कहीं को तुम पिनाने को, तू हाथ कहीं को दिया रे? जाके वहां पे सास के घर में बैठ के सास के हाथ में, सालियों के हाथ में कहीं को दे गया. अगर ऐसा जबरदस्ती को पिना दिए तो तू वस्त्रा लेके जा, छुरा लेके जा, नहीं तो एक आरा लेके जाके वहीं काट के अपनी उंगली फेंक दे. बता उनको कि मैं बहुत खतरनाक हूं, अल्लाह रसूल के मामले में मैं कोई चीज नहीं सुनता. उन्होंने भी सेटिंग में आके फिर जहेज भी नहीं देते, बेटी को तरबियत करके देते, हमेशा शौहर की इताअत कर बेटे, दौरी केस बुक नको कर बात. तो अब तू उंगली दे दिया, अच्छा पिना दो, अंगूठी पिना दो बोल के, उसके अंगूठी पहन लेके आ गया बेगैरत. उसके बाद जर्रा भी बेटी को सताया, ऐसा अंगूठी पहन के बेटी को सताता रहे, तू तेरे अम्मा बा जा डोरी केस में बोल. तो उसके वास्ते क्या करना, जहेज नहीं देना है. जहेज हराम है. तोहफे का मतलब है दुल्हन को सिर्फ वही सामान देना जो सामान सिर्फ लड़की इस्तेमाल कर सकती है, दुल्हा इस्तेमाल नहीं कर सकता. अच्छा, वो शादी के दिन ही देना क्या जरूरी होगा इन लोगों को? तो तुम अगर देना ही है 1-3 महीने के बाद दो ना. शौक से आके लेता हूँ, सबको बता के गई, मगर सबको बताएंगे हम दामाद को इतना दिए, इतना दिए, इतना दिए. अजी अम्मा, तुम दामाद को उतना सब मत दो, बजाय उतना सब देने के एक फर्मा बरदार अल्लाह रसूल की बेटी दे डालो. अपनी बेटी जो अल्लाह रसूल की फर्मा बरदार है वो दे दो सिर्फ. तुम अगर वो दिए तो समझो दामाद को सबसे प्यारी चीज दे दिए. तुम वो नहीं दे के बाकी सब कुछ दिए तो बेटी भी गई, उसका घराना भी गया. आज सब दे रहे हैं लेकिन अल्लाह रसूल की तालीम बेटियों को नहीं दे रहे हैं, बेटों को नहीं दे रहे हैं. जहेज हर सूरत में हराम है. बास जाहिल कमबख्त जलील किस्म के लोग अल्लाह के नबी पे तोहमत बांधते, नऊज़ुबिल्लाह. जो अल्लाह के नबी पर तोहमत बांधा उन्हें जलील है कि नहीं है? क्या तोहमत बांधते मालूम नहीं? उन्होंने बीबी फातिमा की शादी में अली रजी अल्लाह को जहेज दिए. बोलते अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, कैसी बात कर रहे हैं? जो नबी पूरी उम्मत को एक चीज हराम की है वो खुद की बेटी में वो करेंगे, शादी में करेंगे? क्या ख्याल है? पूरोंगन से जवाब नहीं आ रहा, डाउट में है. वो वाकया ये है, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद अबू तालिब का इंतकाल हो गया था, मर गए थे उन्होंने. तो अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का जब रिश्ता तय हुआ बीबी फातिमा से, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर बोले, ऐ मेरे नबी, आप अल्लाह के रसूल हैं, ये आपकी साहिबजादी है, मेरी किस्मत,
میرے جیسے ناچیز کے قسمت کے میرے نبی کی صاحبزادی میری بیوی بن کے آ رہی. میرے پیارے نبی میرے والد کی جگہ آپ رہ کر مجھے پال پوس کر بڑا کیے. آپ میرے چچیرے بھائی بھی ہے, وقت کے رسول بھی ہے. یہ کچھ پیسے میں جمع کر لیا تھا اپنی شادی کے لیے. میں چاہتا ہوں آپ فاطمہ کے تو والد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اب میری والد کی جگہ رہ کر بھی میرے لیے بھی کوئی تحفے لے لیں. یہ لیجئے وہ پیسے جو میں جمع کیا تھا, جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے تھے, ان پیسوں سے تحفہ خرید کر دیے. نبی خود کے پیسے سے بیٹی کو جہیز نہیں دیے. سمجھ میں آیا؟ ماشاءاللہ. تو اب کسی بھی طریقے سے اپنے بیٹیوں کی دعوت میں ای کیا ہوتا, لوگاں کیا بولیں گے, لوگاں کچھ بھی بولنے دو جی, اماں نکو دو. یہ لوگاں تمہارے کو جہنم کی آگ میں گئے تو نہیں بچاتے.